we have done both the things. अच्छा, अमित इज टेलिंग समथिंग, मैम वो एक्चुअली कल कॉलेज से भी असाइनमेंट मिला था तो उसके कारण हो गया। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम अमित, यू कैन शो मी नेक्स्ट टाइम। अवंतिका मैम, मेरा तबीयत खराब है इसीलिए थोड़ा लिखा। नो प्रॉब्लम अवंतिका, यू हैव शोन दैट मच गुड। Okay, so in the last class we have seen about the menstrual cycle, we have seen about the gametogenesis. In that we have learned about the formation of sperm and formation of egg, and then we have learned about the gametes, that is the male gamete spermatozoa and the female gamete ovum. Till here we have completed it, we have done the assignment also. Now let us move on to the next part of the lesson, that is the fertilization. Fertilization can also be called as a syngamy. क्या बोलेंगे इसको हम? Syngamy. So बोर्ड एग्जाम में फर्टिलाइजेशन नहीं पूछकर आपको सिनगैमी के नाम से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। फर्टिलाइजेशन तो कॉमन टर्म है जो आप हमेशा से सुनते आए हो, ये आपका फेमिलियर टर्म है, बट सिनगैमी इतना फेमिलियर नहीं है। सो प्लीज नोट डाउन द ऑल्टरनेटिव नेम ऑल्सो। So basically fertilization का मतलब क्या होता है? Fusion of a male gamete, that is sperm, with a female gamete, that is egg, to form again a single cell. देखो, दो अलग अलग न्यूक्लियस फ्यूज होके एक सेल बन जा रहा है, वापस एक सेल बन जा रहा है। मेल एक सेल, मेल गैमेट एक सेल है, फीमेल गैमेट एक सेल है, दो सेल जुड़ के एक सेल बन जा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट। That is what is called as the fertilization. Okay, so it's a process of fusion of a haploid male gamete with a haploid female gamete to form a diploid zygote, a single cell but diploid. उसमें full set of chromosome रहेगा, full set of chromosome रहेगा पर एक single cell बनेगा। हम सब एक single cell से form हुए हैं, है ना? सिंगल सेल की अगर मैं आपको बात करूंगी तो वी कांट सी आल्सो द सिंगल सेल विद द नेकेड आई, है ना? क्या हम एक सेल देख सकते हैं हमारे नेकेड आई से? ऑब्वियसली नो, हम एक सेल नहीं देख सकते, बट हम सब इतने बड़े जो हैं, अ स्मॉल बेबी विच इज बीन फॉर्म, ठीक है, तो उसमें एक सेल से ही आप जस्ट इमेजिन करो कि एक सिंगल सेल से कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जा रहा है। उसी से आईज बन जा रहा है, उसी से नोज बन रहा है, उसी से हाथ बन रहा है, फिंगर्स बन रहे हैं, लेग बन रहा है, फिर all the digestive system, reproductive system, all the systems are been formed nicely and properly inside the body. मतलब only from a single cell, just a single cell, it is going to divide and redivide, it is going to differentiate into many layers, and all the layers will do the work very nicely and properly to form all the systems of our body. So it's just a miracle that a single cell is going to form such a complex body. See, in 11th standard, you have learned about the digestive system. You have seen that हर एक digestive system में भी कितने सारे organs involved है. You have learned about the excretory system. There also you have seen how many organs have been involved in that. So that means what? A single cell which is going to form a complex organism, and therefore it's necessary for you all to know and understand how we all are formed. Okay. So where is the place of fertilization? It is internal. Obviously, it is internal. It is taking place inside the female's body, usually in the ampulla of the fallopian tube. Understood? That we have already discussed. If ampulla wall is not there, you can just also write down at the junction of isthmus and ampulla. एम्पुला और isthmus के जंक्शन पे भी फर्टिलाइजेशन का ये भी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, और एम्पुला रहेगा तो एम्पुला आपको टिक करना है, क्योंकि आपके बोर्ड के बुक में एम्पुला दिया है तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द इवेंट्स और द मैकेनिज्म ऑफ द फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहला क्या है कि द स्पर्म विल कम टुवर्ड्स द ओवम। ठीक है, अभी ओवम कहाँ पे इंतजार कर रही है? फैलोपियन ट्यूब में, एम्पुला रीजन में वो इंतजार कर रही है। विद द हेल्प ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम
The egg is been pushed till the ampulla of the fallopian tube. Now, the sperm has to travel such a long distance. Sperm has to travel from vagina to cervix to uterus, then to the fundus region, then to the isthmus region, and crossing the isthmus region, it has to reach to the ampulla region. अब ये सारे terms आपको पता होना चाहिए because we have already learned in the last class. I'm repeating once again. The sperm has to travel a long distance from vagina to cervix, from cervix to the uterus, then to the fundus region of the uterus, then going to the isthmus region, reaching up till the ampulla region. Understood? So for traveling so much distance, we have seen in the structure of sperm that they are having mitochondria present, spirally called mitochondria, which will provide energy, and the tail helps in the movement. Okay. So it involves capacitation of sperm reaching the vagina. Capacitation of sperm reaching the vagina. 50% sperms are demotilized or destroyed. देखो अभी 400 millions of sperm बने हैं. 400 of millions of sperm ejaculate हुए हैं in the female vaginal tract during the copulation, है ना? During the copulation, 400 millions of sperms are been deposited in the female genital tract. अब इसमें से 50% sperms तो destroy हो गए, demotilized हो गए, मतलब कि destroy हो गए. अब जो बचे हुए 50% है, let us say 200 millions of sperm. Now this 200 millions of sperm will undergo this capacitance. Capacitance हमने पढ़ा था last lecture में. What will happen? The acrosome membrane becomes thin. Calcium ion enters the sperm and tail begins to show rapid whiplash movement. हमने कल पढ़ा था ना कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? जब एक्रोसोम का मेम्ब्रेन पतला हो जाएगा और उसमें से सारे एंजाइम्स बाहर आएंगे, उसी को हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस. अंडरस्टूड? तो होता क्या है कि एक्रोसोम का मेम्ब्रेन पतला पतला होने लगेगा और कैल्शियम आयन की वजह से कैल्शियम आयन एंटर करेगा स्पर्म के अंदर एंड टेल विल शो अ रैपिड मूवमेंट. बहुत ही फास्ट मूवमेंट दिखाएगा. अच्छा, अब नेक्स्ट हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन. It's a hormone present in the female genital tract, will activate the sperm and enhance their motility. ठीक है? प्रोस्टाग्लैंडिन जो फीमेल के ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, वो स्पर्म के मोटालिटी में, मतलब उसको तेज भागने में मदद करेंगे. फिर क्या करेगा? The sperm will swim at the average speed of, you can just imagine, 1.5 to 3 millimeter per minute. The sperm can remain viable for again 2 days. 1 to 2 days. Understood this point, all of you? Any point you have not understood? Any चीज जो नहीं समझ में आया, you can just ask me. First वाला point, movement of sperm towards the ovum. क्या क्या चीजें आपको इसमें याद रखनी है कि स्पर्म जो है वो कैपेसिटेशन करेगा. कैपेसिटेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया? एक्रोसोम का मेम्ब्रेन जो है वो पतला पतला होने लगेगा, जिससे कि what will happen? जिससे कि एंजाइम्स विल बी रिलीज्ड. कैल्शियम आयन जैसे ही एंटर करेगा स्पर्म के अंदर, टेल बहुत ही फास्ट मूवमेंट दिखाएगा. उसको और हेल्प करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन जो प्रेजेंट है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, that will also facilitate the sperm for its motility. Understood? Any doubt? Please ask me now itself. Anyone? मैम वो जो लास्ट पॉइंट है, स्पर्म्स कैन रिमेन वायबल फॉर 24 to 48 hours. तो वो टाइम बीतने के बाद वो जो सारे बाकी के स्पर्म्स रहते हैं वो मतलब खत्म हो जाते हैं. यस बच्चा, बाकी के क्या, वो जो ये भी जो स्पर्म है वो 2 दिन के बाद तो डेड हो जाते हैं. डेड मीन्स, डेड इन द सेंस मीन्स व्हाट बेटा?
कि दे कैन नॉट, वायबल का मतलब क्या होता है कि दे कैन नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द यंग वन, मतलब वो भले फर्टिलाइज हो भी जाएगा पर उससे कोई जाइगोट नहीं बनेगा, ऐसा हम उसको बोल रहे हैं वायबल। अंडरस्टूड। और Yes. फिर उसके बाद जो भी बचा कुछ जो स्पर्म बच रहा है, अभी देखो यू ऑल नो दैट बेबी फॉर्म होने के लिए सिर्फ एक स्पर्म की जरूरत है, ये मिलियन में से सिर्फ एक स्पर्म की जरूरत है ना, जो सबसे तेज भागेगा उसी से जाइगोट बनेगा। तो बाकी के जो स्पर्म्स है ना वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में डीजेनरेट हो जाते हैं। अंडरस्टूड। Yes. एनी अदर डाउट? Okay, so let us move on to the next point. Sorry. Now what will happen, the entry of sperm into the ovum now. So out of this 200 to 400 million, only a few hundred sperm they will manage to reach up to the ampulla. See, this is also a part of the evolution. आपने अगर डार्विन का थियरी पढ़ा होगा, if you have heard about Darwin's theory in your lower classes, आपने कभी देखा है कि एंट जो जितने एनिमल छोटे होते हैं, ठीक है, आई विल मैं इस टॉपिक से थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ, जितने भी एनिमल छोटे होते हैं वो लोग मिलियंस में यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ एंट का। क्या आपने देखा है कि एक एंट एक ही बच्चा देगी? ऐसा कभी होता है क्या? एक एंट एक ही बच्चा देगी, ऐसा होगा? होगा क्या? यस और नो? No. क्योंकि उसके मरने के चांसेस ज्यादा है, वो किसी के पैर के भी नीचे आ सकती है, उसको कोई खाने वाला भी हो सकता है ना। मतलब अगर हम चल रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं, हम तो एक ही पैर से हमारे कितने सारी एंट्स मर सकते हैं। अंडरस्टूड। तो जिस एनिमल के, ये डार्विन ने बताया है कि जिस एनिमल के मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, दे ऑलवेज टेंड टू प्रोड्यूस मोर यंग वंस। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने नॉर्मल थियरी के बारे में। और जो एनिमल बड़े होते हैं, जैसे कि एलिफेंट है, अभी एलिफेंट भी थाउजेंड्स में यंग वन देगा क्या? नहीं, वो काफी बड़ा एनिमल है, इट कैन सर्वाइव बाय इट्स ओन। वो अगर उसको कोई खाने के लिए आ रहा है तो वो भाग सकता है, दौड़ सकता है ना। समझ में आया? तो ये डार्विन ने एक्सप्लेन किया था। तो सेम थियरी में थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिलेट करना चाहूंगी। सी, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था कि एसिडिटी रहती है ना। और इस इतने सारे स्पर्म क्यों बनाए जाते हैं? In the spermatogenesis, why 400 millions of sperms are been formed? क्योंकि नेचर को पता है कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एसिडिटी प्रेजेंट है, उसमें बहुत सारे स्पर्म अपने आप मर जाएंगे। फिर इसमें से कुछ ही लोग के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो आगे तक पहुंच पाएंगे, तो उसमें भी रास्ते में बहुत सारे लोग मर जाएंगे। एंड देयरफॉर मालूम है कि फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में वहां एम्पुला तक पहुंचने में बहुत सारे लोग रास्ते में मर सकते हैं, इसीलिए दे आर बीन प्रोड्यूस्ड इन मिलियंस। अंडरस्टूड? Yes. So Yes, ma'am. 200 to 400 millions, only few sperms will manage to reach up to the ampulla and only a single sperm fertilizes the ovum. ऐसा नहीं है कि समझो एग तक पहुंच भी गए, आप इस डायग्राम में देख सकते हो, देखो ये एग है, इसमें आ तो गए हैं बहुत सारे लोग, पर जो पहला टच करेगा एग को, जो अभी देखो इन सब में से देखो इतने सारे स्पर्म्स आपको दिख रहे हैं, पर सिर्फ ये वाला स्पर्म एग को टच कर रहा है, तो ये वाला जो जिसने सबसे पहले टच किया वही अंदर जाएगा, बाकी के सब भले इसको टच भी कर ले बाद में तो अंदर नहीं जा सकते। अंडरस्टूड? सो दिस इज द थिंग। सो ऑन रीचिंग द ओवम, जैसे ही ओवम के पास पहुंचेगा, ऑलरेडी कैपेसिटेशन हुआ है, एक्रोसोम का मेम्ब्रेन थिन हो चुका है, अब क्या होगा, एक्रोसोम एंजाइम रिलीज करेगा, लाइजिंग एंजाइम, लाइजिंग मतलब तोड़ने वाला, ब्रेकिंग एंजाइम्स रिलीज करेगा। अब इस एंजाइम से क्या क्या चीज टूटेगा, तो लेट अस सी, इट विल डू द लाइसिस ऑफ कोरोना रेडिएटर। तो सबसे पहला कोरोना रेडिएटर से मुलाकात होगी इस स्पर्म की, तो कोरोना रेडिएटर एक समझो एक दीवार है, एक दरवाजा है, उसको तोड़ के उसको अंदर जाना है, तो कोरोना रेडिएटर को उसने तोड़ा।
फिर जैसे ही अंदर जाएगा फिर एक और दरवाजा मिलेगा, वो कौन सा दरवाजा मिलेगा, जोना पेलेसुडा का मिलेगा। फिर जोना पेलेसुडा को समझो उस दरवाजे को खोलकर अंदर गया, फिर एक और दरवाजा मिलेगा वेटिलाइन मेम्ब्रेन का, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। हमने 3 लेयर पढ़ा है ना। तो सबसे पहले दरवाजा क्या मिलेगा, कोरोना रेडिएटा का। उसको खोलने के लिए इसके पास चाबी होनी चाहिए, स्पर्म के पास, तो चाबी क्या है, एंजाइम्स है। अगेन सेकंड दरवाजा क्या मिलेगा, जोना पेलेसुडा को, उसको भी खोलने के लिए इसके एक्रोसोम में एंजाइम्स होने चाहिए। अंडरस्टूड। सो लेट अस सी द रिएक्शन. So on reaching the ovum, the acrosome releases a lysing enzyme which lyses the corona radiata as well as the zona pellucida. So the sperm head passes through the zona pellucida. So the zona pellucida has a fertilizing receptor proteins. These are the 2 proteins present over there. Now the fertilizing binds to a specific acid protein that is anti-fertilizing of the sperm. This becomes a species specific. हर स्पीशीज का जो स्पर्म होता है वो उसी स्पीशीज के एग के साथ फ्यूज होता है। तो ये किसके कारण होता है, बिकॉज ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर गैमेट्स। ठीक है। तो जैसे कि अभी कोरोना रेडिएटा को तोड़ने के लिए या लाइसिस करने के लिए स्पर्म के पास है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम से उसने क्या किया, कोरोना रेडिएटा को ब्रेक किया और अंदर गया। फिर आता है जोना पेलेसुडा। जोना पेलेसुडा को ब्रेक करने के लिए उसके पास लाइजिन नाम का या एक्रोसिन नाम का एंजाइम होता है। हमने पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में एक्रोसिन नाम का एंजाइम, डू यू रिमेम्बर? मैंने आपको 2 एंजाइम्स बताए थे, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes. Yes. I've told you there are 2 enzymes. Please all of you, इसलिए मैं बोलती हूँ बच्चा कि हर एक पॉइंट्स आप याद करके रखोगे ना तो अच्छा होगा। देखो हमने 2 एंजाइम्स पढ़े थे, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम एंड एक्रोसिन एंजाइम। तो हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम की वजह से जोना कोरोना रेडिएटा का लेयर टूटेगा और एक्रोसिन की वजह से जोना पेलेसुडा का लेयर टूटेगा। ठीक है। और फिर जब अंदर जाएगा स्पर्म तो फिर उसको वापस उसके पास क्या है, एक और मेम्ब्रेन को उसको क्रॉस करना पड़ेगा, दैट इज अ जोना पेलेसुडा के पास फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स होते हैं। जोना पेलेसुडा तो टूट गया पर उसके पास एक फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स होते हैं जिसका नाम है ZP3 एंड ZP2। दिस आर द प्रोटीन रिसेप्टर्स। और इसका चाबी अगेन स्पर्म के पास होता है इन द फॉर्म ऑफ एंटी फर्टिलाइजिंग, मतलब फर्टिलाइजिंग plus anti-fertilizing. This is the reaction which is taking place. I hope this point is also understood by you. Again, I will repeat. Again, I will repeat it. Those who have not understood. See, out of these millions of sperm, only some sperms will manage to reach up till ampulla. And फिर उस some में से भी कुछ ही लोग fertilize कर पाएंगे और कुछ में से भी सिर्फ एक sperm fertilization में मदद करेगा। Now what will happen? हमने पढ़ा है कि ओवम के पास 3 लेयर्स हैं, कोरोना रेडिएटा सबसे बाहर, उसके बाद जोना पेलेसुडा और उसके बाद उसका खुद का सेल मेम्ब्रेन जिसको हमने वेटिलाइन मेम्ब्रेन कहा था। तो पहले कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करने के लिए स्पर्म के एक्रोसोम से निकलता है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम जो कि कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करके अंदर जाएगा। फिर आता है जोना पेलेसुडा, उसको ब्रेक करने के लिए एक्रोसिन नाम का एंजाइम था, एक्रोसिन नाम का एंजाइम। अच्छा, जब जोना पेलेसुडा में जाता है तो स्पर्म की मुलाकात किससे होती है, रिसेप्टर प्रोटीन से, फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर प्रोटीन से होती है जिसका नाम है ZP3 एंड ZP2। अच्छा, अब इसका रिएक्शन के लिए स्पर्म के पास एंटी फर्टिलाइजिन है। सो ये जो फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन है ना, दीज आर वेरी स्पीशीज स्पेसिफिक, है ये। अंडरस्टूड? चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अभी जो आपको मैंने बताया एक्रोसोम का रिएक्शन, सो लेट अस अंडरस्टैंड ओवर हियर। सो लाइसिन एक्रोसोमल एंजाइम्स, लाइसिन का मतलब ब्रेकिंग डाउन, sperm act on the ZP zona pellucida and this causes egg reaction. A small fertilization cone या फिर cone of reception is formed on the egg membrane. The sperm head comes in contact with this cone and plasma membrane जिसको हमने वेटिलाइन membrane बोला
of both cell dissolves at the point of contact. Again, I will make you the things understood. अभी जो फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन का स्टोरी खत्म हो गया. अब ये जो स्पर्म का हेड है, जैसे ही वेटेलाइन मेम्ब्रेन को टच करेगा, स्पर्म का हेड जैसे ही फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन को टच करेगा, ये फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन जो है उसके जो सेल्स है वो डिसॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बोथ द सेल्स विल डिसॉल्व एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. द स्पर्म का न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल एंटर्स द एग व्हाइल द अदर पार्ट रिमेन्स आउट. मतलब टेल, नेक, मिडिल पीस ये सब बाहर रह जाता है. सिर्फ अंदर कौन जाएगा? न्यूक्लियस और सेंट्रियोल जाएगा स्पर्म का एग के अंदर. बाकी का सब पार्ट, नेक, मिडिल पीस, टेल सब पीछे रह जाएगा. As soon as the sperm head touches the vitelline membrane, a cortical reaction gets elevated, changing the vitelline membrane into the fertilization membrane. जैसे ही स्पर्म का हेड वेटेलाइन मेम्ब्रेन पे टच करेगा, उस मेम्ब्रेन का केमिकल मेकअप चेंज हो जाएगा एंड वो किस में बदल जाएगा? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में बदल जाएगा. ठीक है, by deactivating the receptors of ZP. So a perivitelline space is created around the fertilization membrane. This will prevent the further entry of sperm, which is called as a polyembryony. Polyembryony. Okay, in simple term I will explain you. ठीक है, ये सारा पॉइंट्स जो है मैं वापस आपको एक्सप्लेन करूंगी ना सिंपल टर्म. देखो क्या हो रहा है, कोरोना रेडिएटर से अंदर गया, जोना पेलिटोसुडा से अंदर गया, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन हो गया. अब क्या हो गया, जैसे ही स्पर्म का हेड इस वेटेलाइन मेम्ब्रेन को टच करेगा, हाँ मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, जैसे ही स्पर्म का हेड इस वेटेलाइन मेम्ब्रेन को टच करेगा, वेटेलाइन मेम्ब्रेन का केमिकल मेकअप चेंज हो जाएगा और वो किस में बदल जाएगा? फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन में बदल जाएगा. किस में बदल जाएगा? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन में बदल जाएगा. क्यों बदल जाएगा? ताकि ये जो स्पर्म एक बार अंदर गया है, जिसने वेटेलाइन मेम्ब्रेन को सबसे पहले टच किया है, अब कोई भी स्पर्म आने दो, अभी बहुत सारे स्पर्म तो आ ही रहे हैं ना ऑब्वियसली एग के पास. आप देख सकते हो कि बहुत सारे स्पर्म आए हैं इस एग के पास. बहुत सारे स्पर्म ने जोन कोरोना रेडिएटा को तोड़ा होगा, बहुत सारे स्पर्म ने जोना पेलिसुडा को तोड़ा होगा, पर जो सबसे पहले वेटेलाइन मेम्ब्रेन पे तक पहुंचा है, उसके बाद अब कितने भी स्पर्म्स को कोरोना को तोड़ने दो, जोना को तोड़ने दो, पर अब कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा, सिर्फ वो वहीं तक दरवाजा बंद हो जाएगा. अंडरस्टूड? So this is what is called as it will avoid the polyembryony या polyspermy. ठीक है, एक स्पर्म अंदर जाते ही दरवाजा बंद. पॉलीएम्ब्रियोनी नहीं हो सकता. पॉली मीन्स many embryos cannot be formed, only a single embryo will be formed, and for single embryo only one sperm is required. Understood? Okay. Yes. ये वाला भी पैराग्राफ पढ़ लो, नहीं समझा तो you just ask me. Just read this paragraph and then I will start with the third one, a fourth one, that is activation of ovum. Now, next let us learn about the एक्टिवेशन ऑफ ओवम. अभी एक्टिवेशन ऑफ ओवम तो मैंने आपको कल ही थोड़ा बहुत बता दिया था. क्या होगा, क्योंकि अभी स्पर्म क्या कंट्रीब्यूट करेगा? सेंट्रियोल कंट्रीब्यूट करेगा. सो व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट? द एग विल अंडरगो इट्स मियोसिस 2. अपना वो मियोसिस 2 कंप्लीट करेगी एंड देन वो क्या बन जाएगी? फीमेल प्रोन्यूक्लियाई बन जाएगी. ठीक है, अभी तक वो किस में है? सेकेंडरी oocyte कंडीशन में है. क्यों सेकेंडरी oocyte में है? क्योंकि मेटाफेज 2 में जाकर वो अरेस्ट हो गई है, इसीलिए. सो व्हाट विल हैपन, जैसे स्पर्म अंदर आएगा, अभी हमने देखा यहाँ पे पढ़ा
कौन कौन अंदर जाएगा? सिर्फ न्यूक्लियस और सेंट्रियोल, यही दो चीज अंदर जाते हैं, बाकी का सारा चीज स्पर्म का बाहर रह जाता है। तो सेंट्रियोल जैसे ही मिलेगा एग को, इट विल फटाफट कंप्लीट इट्स मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 कंप्लीट करेगी, एनाफेज 2, देन टेलोफेज 2, एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड। नाउ द एग which has completed its meiosis 2 will be now called as female pronuclei, female pronuclei। ठीक है, आपने ऑलरेडी कल पढ़ा था कि जब oogenesis हो रहा था तो अनइक्वल साइटोप्लाज्म डिवीजन हो रहा था। तो उस वक्त क्या हुआ था कि एग के पास ढेर सारा, बहुत सारा साइटोप्लाज्म था। ठीक है, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड, सी the thing which is contributed by the egg is the cytoplasm, because sperm has little bit of cytoplasm, and the thing which has been contributed by the sperm is the centriole. So दोनों का कंट्रीब्यूशन हुआ, तब जाकर जो एम्ब्रियो है, जो जाइगोट है, वो फॉर्म हो रहा है। अंडरस्टूड? एग ने क्या कंट्रीब्यूट किया? बहुत सारा साइटोप्लाज्म लाया, बहुत सारा खाना लाया है, न्यूट्रिशन लाया है, जिससे कि ये जाइगोट बन सके। और स्पर्म ने क्या किया है? एग को कंप्लीट किया है बाय गिविंग द सेंट्रियोल। अंडरस्टूड? ठीक है, सो एक्टिवेशन ऑफ द ओवम। So with the contact of sperm head to the petalline membrane, the ovum gets activated and completes its meiosis too. So the fusion of egg and the sperm takes place by degeneration of covering of male and female pronuclei. मेल प्रोन्यूक्लिया किसको बोलेंगे? सिर्फ न्यूक्लियस, मेल जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है ना, उसे हम मेल प्रोन्यूक्लिया कहते हैं। और एग ने जब अपना मियोसिस 2 कंप्लीट कर लिया है तो हम उसे कहेंगे फीमेल प्रोन्यूक्लिया, जिसके कारण क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ सिनकैरियन। सिनकैरियन, कैरियन का मतलब क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। सिन मींस फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड देयरफॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ सिनगैमी, या फिर कैरियोगैमी, या फिर एम्फीमिक्सिस। सिनगैमी, कैरियो मतलब क्या होता है बेटा? कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस का गैमी, न्यूक्लियस का फ्यूजन। एम्फीमिक्सिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक स्पर्म और एक एग, दो अलग अलग चीज इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको एम्फीमिक्सिस कह रहे हैं। And the zygote thus formed, which is the first cell of a new life. Now इससे एक नया लाइफ जनरेट होने वाला है। So just see this paragraph, activation of ovum. So what is the significance of fertilization? It will help in completion of meiosis 2 of the egg. So oogenesis complete करेगा ये, डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स को रिस्टोर करता है, क्योंकि मेल भी हैप्लॉइड गैमेट, मेल गैमेट भी हैप्लॉइड था, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड था, तो डिप्लॉइड जाइगोट बना। Yes, it determines the sex of offspring. How? Is it the male or a female who will decide the sex of offspring? Tell me. मेल मेल Why male? Because मेल में egg एक्स is बार only होता है, female. Y chromosome. एक क्रोमोसोम होता है। देखो एग में, एग तो एक ही फॉर्म होता है बेटा, और हमेशा एग एक्स एक्स वाला ही बनेगा, एक्स क्रोमोसोम वाला ही एग बनेगा, है ना? क्योंकि फीमेल Yes. के पास सिर्फ एक्स और एक्स ही क्रोमोसोम होता है, और जो एग बन रहा है वो एक्स वाला ही बनेगा। पर ये जो 400 मिलियंस ऑफ स्पर्म बने हैं, उसमें से आधे एक्स वाले होंगे और आधे वाई वाले होंगे। अब इसमें से जो फास्ट जाएगा, जो सबसे पहले भाग कर जाएगा और एग को फ्यूज करेगा, फिर वो एक्स वाला हो तो लड़की होगी, अगर वाई वाला गया स्पर्म तो लड़का होगा। सो इट इज ऑलवेज द स्पर्म, जो सबसे भागने वाला स्पर्म है, अगर एक्स वाला तेजी से भाग के गया तो लड़की होगी, अगर वाई वाला तेजी से भाग के गया तो लड़का होगा। सो इट इज द स्पर्म हु डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा। It combines the character of both the parents, जिसकी वजह से वेरिएशन देखने के लिए मिलता है ना? हम पेरेंट से ही फॉर्म हुए पर हम कितना डिफरेंट दिखते हैं,
ठीक है, भले थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज रहेगा, आईज दिखेगा, नोज दिखेगा, बट फिर भी वेरिएशंस हैं। एक ही पेरेंट के अगर 4 बच्चे हैं तो 4 अलग अलग दिखेंगे, चारों सेम दिखेंगे क्या? नहीं। क्यों अलग अलग दिखेंगे बेटा? बिकॉज हर टाइम एक अलग स्पर्म ने फ्यूज किया है। ठीक है, भले चारों लड़के ही क्यों नहीं होने दो, अगर 4 लड़के भी हैं तो हर बार एक अलग अलग स्पर्म ने, एक नए स्पर्म ने फ्यूज किया है, भले वाई वाला ही क्रोमोसोम हो, बट फिर कैरेक्टर्स जो है उसके अंदर, ऑटोसोमल कैरेक्टर्स दैट विल बी डिफरेंट, सो इट लीड्स टू द वेरिएशन, और वेरिएशन है तो इवोल्यूशन है। ठीक है, so I hope all of you have understood this part. Any doubt till here? No, ma'am. No, ma'am. Shall we move forward? आपको ये भी लिखना है बेटा, and this diagram also you have to draw, which has been given in your textbook. So in simple term, I will again just explain you in simple term what will happen. For breaking the egg ka layers, the sperm ka acrosome has different enzyme. Hyaluronidase enzyme for corona radiata, acrosin for zona pellucida. Then it will form fertilizing, anti-fertilizing reaction. जैसे sperm will touch the vitelline membrane, it will be converted into fertilizing membrane so that another sperm will not come inside. जैसे ही sperm अंदर जाएगा, हाँ, the male it only the sperm का nucleus and centriole will enter inside. So the male का जो nucleus है उसे हम कहेंगे male pronuclei कहेंगे। ठीक है, centriole मिलते ही the egg will complete its oogenesis, पूरा complete होगा, और फिर अब ये क्या कहलाएगी? फीमेल प्रोन्यूक्लियाई कहलाएगी। तो फ्यूजन किसका होता है? मेल प्रोन्यूक्लियाई और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई दोनों फ्यूज होंगे और जाइगोट बनेगा। ठीक है, सो जाइगोट फॉर्मेशन को हम सिन कैरियन भी कह सकते हैं, सिन गैमी भी कह सकते हैं, कैरोगैमी भी कह सकते हैं, या फिर एम्फीमिक्सिस भी कह सकते हैं। So in short, I've explained you. You have to just see the detailing of that. So all of you, please take down the assignment. Note down the assignment, all of you. See, this lesson carries the highest weightage, huh? This lesson को highest weightage, and therefore I am emphasizing on this lesson a more. Noted the assignment? Yes, ma'am. Yes. All of you will be writing, Yes. finding out the answers from your textbook so that you will read the textbook. टेक्स्ट बुक रीड करके सारे क्वेश्चंस के आंसर आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, नाउ लेट अस लर्न द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब देखो, पहले ये 2-3 चीजें, एक चीज याद रखो, जैसे हम बायो में बोलते हैं कि एक सेल डिवाइड होता है मतलब बायो में क्या होता है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना। बायो में अगर हम कोई चीज डिवीजन बोल रहे हैं मतलब वो नंबर घट नहीं रहा है, नंबर बढ़ ही रहा है। वी आर नॉट, हम लोग मैथ्स को नहीं सुनते हैं। ठीक है, हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन भी बढ़ना है, डिवीजन भी बढ़ना है। ठीक है, सो व्हाट आई वाज टेलिंग, अगर हम नॉर्मल सेल को बोलते हैं कि सेल इज डिवाइडिंग, तो आप क्या बोलते हो? डॉटर सेल्स आर फॉर्म, बोलते हो कि नहीं? एक सेल अगर डिवाइड होता है तो आप कहोगे कि डॉटर सेल्स आर फॉर्म। पर जाइगोट के लिए जब डिवाइड होता है, जब ये एक सिंगल सेल था बेटा, एक सिंगल सेल है, डिवाइड हुआ, तो ये जब डिवाइड होगा ना तो उससे जो बनेंगे उसे हम ब्लास्टोमियर कहेंगे, जो कि डॉटर सेल ही है। अंडरस्टूड मैं क्या बोल रही हूँ? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. जाइगोट भी एक सिंगल सेल है, उससे वो जब डिवाइड होगा उससे 2 सेल बनेंगे, वो डिवाइड होगा उससे 4 बनेंगे, और डिवाइड होगा उससे 8 बनेंगे। तो ये सब क्या बन रहे हैं? डॉटर सेल्स बन रहे हैं। पर इस डॉटर सेल्स को जब हम जाइगोट की बात करेंगे तो हम उसे डॉटर सेल नहीं बोल के एक अलग नाम से बोलेंगे, एंड दैट नेम इज ब्लास्टोमियर।
ठीक है। तो ब्लास्टोमियर अगर मैं जब कहीं पे भी कहूंगी तो आप समझ जाना कि ये एक सेल से दो सेल वाले बने तो मैं बोलूंगी दो ब्लास्टोमियर बने, फिर दो से चार बने तो मैं बोलूंगी चार ब्लास्टोमियर बने, फिर चार से आठ बने तो आठ ब्लास्टोमियर बने। तो ब्लास्टोमियर का बेसिक मतलब है डॉटर सेल्स, ठीक है। बट यहाँ पे हम इसे डॉटर सेल्स नहीं बोलेंगे क्योंकि ये जाइगोट है इसलिए। ओके, सो द वेरी फर्स्ट प्रोसेस विच विल टेक प्लेस इज द क्लीवेज। ये सीक्वेंस में ही होता है, ऑर्डर मैनर में ही होता है, ठीक है। सो सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो होगा क्लीवेज। अब सिंगल सेल जाइगोट बन गया, अब इसको डिवाइड होना है। अब यहाँ पे देखो बेटा, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस ही होता है। अब मियोसिस कहीं पे भी नहीं होगा, मियोसिस सिर्फ गैमेट्स में होता है। अब यहाँ पे ये जो सिंगल सेल है वो बढ़ेगा 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 एंड बढ़ेगा। एंड यू ऑल नो दैट कोई भी चीज को अगर बढ़ना है तो वो कैसे बढ़ेगा? बाय डूइंग द माइटोसिस। आप छोटे से बड़े हो गए, कैसे बड़े हो गए? बिकॉज सेल्स बढ़े, इसीलिए आप बड़े हो गए ना। सेल्स बढ़े ना आपके बॉडी में, तो सेल्स बढ़े मतलब क्या हुआ? आपके हर एक सेल के अंदर माइटोसिस हुआ। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे भी यही चीज होने वाला है कि एक 3 किलो का या 4 किलो का जो बच्चा फॉर्म होने वाला है एक सिंगल सेल से, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअसली माइटोसिस होगा होगा एंड होगा। तो जो सिंगल सेल है जब उसका माइटोसिस होगा तो वो एक से दो बनेगा, दो से चार बनेगा, चार से आठ बनेगा, और आठ के बाद 16, 16 के बाद 32। आप देख सकते हो यहाँ पे इस पिक्चर को देखो, बाद में मैं थियरी पार्ट पे जाऊंगी, पहले आप इस डायग्राम को देखो, फिर आई विल टेल यू ऑल द बेसिक थिंग्स नाउ। यू कैन सी दैट फर्स्ट क्लीवेज हुआ, दो सेल बना। दूसरा क्लीवेज हुआ, चार ब्लास्टोमियर बना। फिर क्लीवेज हुआ, 8 सेल कंडीशन में आ गया। फिर 8 से 16 होगा, 16 से 32 होगा। अब 32 होने के बाद ये कैसा दिख रहा है बेटा? एक मलबरी के जैसा दिख रहा है। आपको पता है मलबरी एक फ्रूट है, मलबरी एक फ्रूट है जिसमें से छोटे 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 ऐसे रहते हैं, ऐसे बल्जिंग पार्ट रहते हैं। तो एकदम फ्रूट के जैसा दिख रहा है, ये मलबरी के फ्रूट के जैसा दिख रहा है, इसलिए हम इसको नाम क्या देते हैं? मोरियूला। क्या बोलेंगे? मोरियूला। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब सिंपल मतलब है एक सेल को डिवाइड होके दो बनना, दो से चार बनना, चार से आठ बनना, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ क्लीवेज। ठीक है। जब वो 32 सेल कंडीशन पे आ जाएगा डिवाइड होते होते, तब हमने उसको एक नाम दिया कॉल्ड एज अ मोरियूला। मोरियूला क्यों दिया? क्योंकि इट इज लुकिंग लाइक अ मलबरी का फ्रूट, देयरफॉर। ठीक है। तो चलो ये बाद में मैं बताऊंगी आपको ब्लास्टोसिस्ट, पहले हम इतना देखते हैं। यहाँ पे लेट अस कम टू द थियरी पार्ट। सो अ प्रोसेस ऑफ rapid mitotic division of a zygote to form a hollow spherical multicellular developmental stage which is called as a blastula. क्लीवेज क्यों हो रहा है बेटा? क्लीवेज क्यों हो रहा है? ब्लास्टुला होने के लिए, क्योंकि क्लीवेज के बाद ब्लास्टुला स्टार्ट होएगा। तो ये क्लीवेज क्यों किया जा रहा है, ऐसा सब क्यों हो रहा है? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप बनाना है, ब्लास्टुला बनाना है, इसीलिए व्हाट इज बीन सेड ओवर हियर इन द फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है। तो इतना सारा माइटोटिक डिवीजन क्यों किया जा रहा है? टू फॉर्म द ब्लास्टुला व्हिच इज द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, ह्यूमन क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, प्लीज टिक डाउन, नोट डाउन। होलोब्लास्टिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पूरा का पूरा जाइगोट डिवाइड होता है। मतलब जो पूरा जाइगोट है वो डिवाइड हुआ, दो सेल बना, पूरा का पूरा वापस वो दो सेल डिवाइड होगा और फिर चार सेल बनेगा। एंड दैट टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज अ होलोब्लास्टिक डिवीजन। अब सेल बिकम्स, अब जब डिवीजन हो रहा है बेटा तो प्लीज नोट डाउन करो, प्लीज नोट डाउन करो। जो सेल का साइज है आप देख सकते हो, अगेन यहाँ पे देखो, क्या आपको डायग्राम में फर्क नजर आ रहा है? देखो यहाँ पे कितने बड़े बड़े हैं, फिर थोड़े छोटे हो गए, फिर थोड़े छोटे हो गए, फिर यहाँ पे देखो, ये देखो फर्स्ट स्टेज में ए वाले डायग्राम में कितने बड़े थे, अब देखो यहाँ पे कितने छोटे हो गए। तो जैसे जैसे क्लीवेज होते जाएगा ना, सेल का साइज, सेल का साइज छोटा होते जा रहा है। अंडरस्टूड? अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। So the cell progressively becomes smaller, resulting in the daughter cells, जिसको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। फर्स्ट क्लीवेज कब होता है? आफ्टर 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है।
30 आवर्स में फर्स्ट क्लीवेज हो जाता है. इट डिवाइड्स लॉन्जिट्यूडनली, लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन हो रहा है और उससे क्या बन जा रहे हैं, 2 ब्लास्टोमियर बन गए, जिसको आप ए डायग्राम में देख सकते हो. फिर सेकेंड क्लीवेज कितने घंटे में होता है, वापस 30 घंटे के बाद. फिर 60 आवर्स में क्या हो जाएगा, अगेन लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन होगा राइट एंगल पे, एंड अगेन थर्ड क्लीवेज होगा. 8 सेल कंडीशन पे चले गया. एज द क्लीवेज प्रोग्रेसेस द यंग एम्ब्रियो इज ग्रेजुअली पुश्ड टुवर्ड्स द यूट्रस. अब ये सिर्फ फैलोपियन ट्यूब में नहीं रहेगा, अब फैलोपियन ट्यूब से रोल करते 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 ये यूट्रस तक पहुंच रहा है. सो बाय द एंड ऑफ 4th डे, चौथे दिन पे क्या हो जाता है, एक सॉलिड बॉल बन जा रहा है. देखो बॉल बन रहा है ना, 16 to 32 सेल वाला बॉल बन रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉर्यूला. और ये भी याद रखो बेटा कि जैसे जैसे क्लीवेज होते जा रहा है, ये रोल करते करते यूट्रस तक पहुंच रहा है, फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक पहुंच रहा है. So till the formation of morula, zona pellucida is retained. Yes, this is also, आप देख सकते हो ऊपर का लेयर दिख रहा है आपको, zona pellucida है around the embryo. Thus, there is no change in the overall size from the zygote to morula. मतलब जो साइज जाइगोट का था वही साइज मोर्यूला का है, क्योंकि ऊपर का कवरिंग उतना ही है पर सेल डिवाइड हो रहा है, इसलिए सेल छोटे हैं पर साइज उतना ही है, क्योंकि जोना पेलिसुडा अब भी है इसीलिए. अंडरस्टूड मैं क्या बोल रही हूँ, जो साइज जाइगोट का था वही साइज मोर्यूला का भी है. क्यों ऐसा, बिकॉज जोना पेलिसुडा अब भी है और इसी के कारण सेल बड़ा नहीं हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है, जबकि सेल का साइज डिवाइड होने की वजह से, क्योंकि स्पेस उतना ही है ना, तो इसलिए छोटे 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 हो रहा है सेल. अंडरस्टूड. The morula reaches the uterus by 4th to 5th day after the fertilization. अब ये मोरुला अब यूट्रस तक पहुंच जाएगा, कौन से दिन तक, 5th डे तक पहुंच जाएगा. Please go through all the points. Anything which you have not understood, please ask me. Is any doubt? Are you still reading? Yes, Sharon. Any doubt, बच्चा? No, miss. Akshay? No, ma'am. Rest other children's? Aditi, Riddhi, Devika, Christine, Bhushan, Manali. No, ma'am. इतना सबको समझ में आ गया बच्चा? अमित? Yes, ma'am. चलो, let us see the next process, that is the blastulation. क्लीवेज के बाद होता है ब्लास्टुलेशन. क्या होता है? ब्लास्टुलेशन. तो पहले मैं आपको इस डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम थियोरी पार्ट पे जाते हैं, ठीक है? अब देखो, ये जो मॉर्यूला है, ये जो ग्रुप ऑफ सेल आपको नजर आ रहा है, अब ये क्या होगा, यूट्रस में पहुंचते ही, अभी देखो ये यूट्रस में पहुंच गया है ना, ये मॉर्यूला कहाँ पहुंच गया, यूट्रस में पहुंच गया. अब यूट्रस के से यूटराइन मिल्क को ये एब्जॉर्ब करेगा. क्या करेगा? यूटराइन मिल्क को ये एब्जॉर्ब करेगा करेगा करेगा. अब जब ये सेल्स यूटराइन मिल्क को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा बेटा, द सेल विल गेट अरेंज in such a manner that
कुछ सेल्स ऐसा बाउंड्री बना लेंगे और कुछ सेल्स एक कोने में आ जाएंगे। ठीक है, देखो अलग कलर से आपको डिप्लीकेशन दिया गया है, यही सेल, यही सारे सेल्स है, पर इन्होंने एक एक पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लिया है। यही 32 सेल में से कुछ सेल्स ने बाउंड्री बना ली है और कुछ सेल्स ऐसे ऊपर की तरफ एक कोने में आ गए हैं। अब एक कोने में क्यों आए? क्योंकि इस मोरुला ने यूट्राइन मिल्क को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, इस यूट्राइन मिल्क को एब्जॉर्ब करने की वजह से कुछ सेल्स एक कोने में आ गए हैं और यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, एक कैविटी फॉर्म हो गई है जिसे हम कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। क्या कहेंगे? ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। एंड देयरफॉर because this cavity is formed, it is called as the blastulation. क्या कहते हैं इसको हम? ब्लास्टुलेशन। और ये जो बाहर के सेल्स है जो बाउंड्रीज बना रहे हैं इसे हम कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट। व्हाट वी विल बी कॉलिंग इट एज अ ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट क्या है? बाहर का आउटलाइन है। हाँ, बीच में कैविटी फॉर्म हुई है उसको क्या कहेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। And therefore this pattern is called as the blastulation. Understood? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. अच्छा, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ना बेटा, अब ये अर्ली ब्लास्टोसिस्ट है। अब ये वाला डायग्राम देखो, हाँ थोड़ा और बड़ा हो गया ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो बाहर के बाउंड्री वाले सेल दिख रहे हैं ना बेटा, ये ट्रोफोब्लास्ट जो आपको दिख रहा है, इसका काम क्या होगा? नरिशमेंट का काम होगा। ये सिर्फ नरिशमेंट करेगा। ठीक है, ये दिमाग में फिट कर लो या लिख लो। ट्रोफोब्लास्ट का काम क्या है? आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो वो नरिशमेंट करेगा, और भी बहुत सारा काम है, पर अभी के लिए इतना समझो कि वो नरिशमेंट करेगा। ट्रोफोब्लास्ट विल डू द नरिशमेंट। और ये जो एक कोने में सेल इकट्ठा हुआ है ना, इसी से हम सब बने हैं। दिस इज गोइंग टू फॉर्म द एम्ब्रियो। अंडरस्टूड? ये जो ऑरेंज कलर आपको नजर आ रहा है, इसी से हम सब बने हैं। दिस इज द एम्ब्रियो। It is going to form the embryo. मतलब क्या? ये मोरुला ने अपने आप को अरेंज किया by absorbing the uterine milk in such a way that some of the cells has occupied one corner and some of the cells has formed the boundary. The boundary wala cell is called as a trophoblast, which is going to do the nourishment, and the cell which has accumulated at one corner, it is going to form the embryo. There is a cavity form over here called as a blastula, and therefore this process is called as blastulation. Blastulation. So let us see the next slide. See this. Formation of blastocyst called as blastulation. इस डायग्राम से भी आप आसानी से देख सकते हो। तो देखो, let us learn this part. फिर हम इस पे जाते हैं। So the outer layer cell of morula क्या absorb करता है? Uterine milk, जिसको हम nutritive fluid भी कह सकते हैं, या तो आप इसको uterine milk भी कह सकते हो। कौन सिक्रीट करता है? यूट्रस का एंडोमेट्रियम सिक्रीट करता है। ठीक, and that is called as a trophoblast. बाहर का लेयर को हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। The trophoblast will absorb the uterine milk and blastocyst doubles in size. With more uterine fluid entering inside, a blastocyst cavity or blastocele is formed. You can see this cavity. The inner cell of the blastocele, the inner mass cell, ये वाले को हम क्या बोलते हैं? इनर मास सेल। इनर मास सेल, इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक नॉब या फिर एम्ब्रियो ब्लास्ट भी बोल सकते हैं। ब्लास्ट का मतलब होता है सेल। ठीक है, सो द इनर मास सेल आपको जो लेबलिंग किया गया है, इसी को आप या तो एम्ब्रियो ब्लास्ट बोल सकते हो या तो एम्ब्रियोनिक नॉब भी बोल सकते हो। प्लीज नोट डाउन ये सारे टर्म्स, अभी आप समझ ले लो बेटा, फिर आगे है ना, आई विल नॉट एक्सप्लेन यू वंस अगेन एम्ब्रियोनिक नॉब क्या है, एम्ब्रियो ब्लास्ट क्या है, बिकॉज वी हैव टू लर्न द अदर पार्ट आल्सो। Now, these cells remain attached to the trophoblast on one side. You can see, ये inner mass cell है, वो trophoblast से attach है यहाँ पे। जहाँ पे trophoblast is in contact with this embryoblast, trophoblast with embryoblast, जहाँ पे इस contact में है, उस contact को हम बोलेंगे cell of Robber. क्या कहेंगे? Cell of Robber. Very important. The trophoblast cell
इन कॉन्टैक्ट विद द एम्ब्रियोनिक नॉब बोलो या एम्ब्रियोब्लास्ट बोलो या तो इनर मास सेल बोलो, इसे हम कहेंगे सेल ऑफ रॉबर. What will happen at this stage? The blastocyst again is showing a polarity. दिख रहा है कि नहीं polarity? Yes, हाँ या नहीं दिख रहा है कि नहीं polarity? दो पोल्स दिख रहे हैं कि नहीं? एक पोल पे एम्ब्रियोब्लास्ट है और एक पोल ऐसे खाली है, तो पोलैरिटी है. Yes, so the side with inner mass cell or is the embryonal end and the opposite is the abembryonal end. जहां पे एम्ब्रियो वाला है उसे हम एम्ब्रियोनल एंड बोलेंगे और उसका अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे? एब एम्ब्रियोनल एंड. एब एम्ब्रियोनल एंड बोलेंगे. तो दो पोल्स बन गए, एक पोल इज एम्ब्रियोनल, दूसरा पोल इज एब एम्ब्रियोनल. अब क्या होगा? सेवेंथ डे पे ब्लास्टुला बन गया. अब क्या होगा? नेक्स्ट प्रोसेस इज इम्प्लांटेशन. अभी देखो ये यूट्रस में ऐसे ही पड़ा है, यूट्रस के अंदर बरी नहीं हुआ है. तो जब ये ब्लास्टुला यूट्रस के अंदर बरी हो जाएगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन, ठीक है. और फिर इम्प्लांटेशन के बाद गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होगा. So, अब at this stage, zona pellucida will now rupture and expose the sticky phagocytic trophoblast cell for implantation. So, the function of zona pellucida is to prevent implantation of the embryo at the abnormal site such as fallopian tube. अगर fallopian tube में ब्लास्टुला रह जाता है तो ऐसे प्रेगनेंसी को हम फॉल्स प्रेगनेंसी कहते हैं. फॉल्स प्रेगनेंसी या फिर उसे हम कहते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी. अंडरस्टूड? एक्टॉपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं. आप जस्ट इमेजिन करो, अभी यूट्रस में तो जगह है तो एम्ब्रियो ग्रो कर पाएगा. अगर फैलोपियन ट्यूब में ही ब्लास्टुलेशन हो गया तो क्या वहां पे वो इतना मोटा ट्यूब है क्या कि वहां पे एक एम्ब्रियो ग्रो कर सके? है क्या फैलोपियन ट्यूब इतना मोटा? No. तो ऐसे अगर ये ब्लास्टुलेशन तक फैलोपियन ट्यूब में रह जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू अ फॉल्स प्रेगनेंसी और अ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी. इन मेडिकल टर्म इट इज कॉल्ड एज अ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, ऑब्वियसली व्हिच हैज टू बी रिमूव्ड, ठीक है, by doing the MTP. ठीक है, MTP I will be teaching you afterwards. It is the medical termination of the pregnancy. Understood? So again I will explain you once again what is blastulation. क्या बताया मैंने blastulation में? First of all, it will form by absorbing the uterine milk. It will form a cavity over here. That cavity is called as a blastocyst and the process is called as a blastulation. Inner mass cell is going to form the embryo, therefore it is called as an embryonic knob, or it can also be called as an embryoblast. So because of that, because it is present at one of the corner, there are two poles formed. The one with the embryoblast is called as the embryonal pole and the other without the inner mass cell is called as the abembryonal end. Okay. Next, we have learned that the trophoblast is going to do the nourishment. The trophoblast cell, which is attached to the embryoblast, where it is in contact, that is called as a cell of Robber. Cell of Robber. ठीक है? और ये condition में it has to reach till the uterus, क्योंकि uterus में वो कहीं ना कहीं attach होगा. Again, आप देख सकते हो कि कितना हर एक चीज perfect है. जोना पेलेसुडा अब तक था. क्यों जोना पेलेसुडा अब तक था? क्योंकि जोना पेलेसुडा का काम क्या था कि वो बराबर से इस एम्ब्रियोब्लास्ट को, इस ब्लास्टोसिस्ट को आसानी से कहीं तो भी यूट्रस में इम्प्लांट कर सके, बराबर जगह पे कर सके. जैसे ही उसे पता चल गया कि ये अब यूट्रस तक पहुंच चुका है, अब जोना पेलेसुडा का काम खत्म हो गया और वो डीजेनरेट हो जाएगा. अंडरस्टूड? So just think each and everything is so perfectly designed. कि जोना पेलेसुडा अब तक इंटैक्ट था, ये इसमें कि वो फैलोपियन ट्यूब में ही ना रुक जाए. वो जब तक उसको यूट्रस तक नहीं पहुंचाएगा तब तक वो इंटैक्ट रहेगा. जैसे ही यूट्रस तक पहुंच गया ब्लास्टुला, वो डीजेनरेट हो जाएगा. ठीक है? और फैलोपियन ट्यूब में नहीं होना चाहिए,
इसका भी ध्यान ज़ोना पेलेसुडा रखता है। तो किसी किसी फीमेल्स में ज़ोना पेलेसुडा पहले ही डीजेनरेट हो जाता है। तो अगर ऐसे कोई फीमेल में पहले ही ज़ोना पेलेसुडा डीजेनरेट हो जाता है, उस कंडीशन में वो फीमेल के फैलोपियन ट्यूब तक ही रुक जाता है। अंडरस्टूड? फिर हम उसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अंडरस्टूड? तो जाइगोट फॉर्मेशन इट्स नॉट एन इजी थिंग। यू कैन थिंक दैट कि कितने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट। एक भी चीज यहाँ का वहां हुआ कि पूरा प्रोसेस विल गो वेस्ट। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Just go through this point and then we will be learning the next point, that is the implantation. पूरा ये रीड करो, कुछ भी डाउट है, एक भी पॉइंट में डाउट है तो यू कैन जस्ट आस्क मी। Then Yes. all of you have done beta, all of you have seen this. So Ma'am, wait a 7th minute. day में हाँ बेटा रुक रही हूँ। हो जाएगा पढ़ के तो मुझे बताना, और कोई भी पॉइंट नहीं समझा तो प्लीज लेट मी नो। हाँ मैम, मेरा वो 7th डे वाले पॉइंट पे अच्छा पढ़ो, टेक योर टाइम बेटा, टेक योर टाइम। मिस ZP का फुल फॉर्म क्या बेटा? ZP का फुल फॉर्म कौन पूछ रहा है मेरे को ये? कौन पूछा बेटा? मिस में शेरोन पूछ रहा है। शेरोन, आर यू गर्ल और ए बॉय बेटा? मिस गर्ल गर्ल, अच्छा वेरी गुड क्वेश्चन बच्चा। कौन बताएगा मुझे जेडपी का फुल फॉर्म? जिला परिषद है जोना पेलुसिडा है ना, जिला परिषद ज़ोना पेरिश। शेरोन, इट्स ज़ोना पेलेसुडा। यस यस इसके पहले भी तो मैंने जेडपी बताया था ना बच्चा, इसके पहले वाले भी तो इसमें जेडपी था। जेडपी मींस अभी पूरा वो लिखने से अच्छा है कि ज़ोना पेलेसुडा। यस पर आप एग्जाम में ऐसे जेडपी विडपी नहीं लिखोगे। हाँ, यस Hello, ma'am. यस बेटा। Ma'am, वो exposes the sticky phagocytic trophoblast cells, वो नहीं समझा। ज़ोना पेलेसुडा exposes a sticky phagocytic trophoblast cell। phagocytic का मतलब क्या है बेटा? Engulf एक्ट ऑफ एनगल्फिंग, है ना। तो अभी हम ये प्रोसेस नेक्स्ट पढ़ेंगे, जब भी इम्प्लांटेशन अभी हम पढ़ेंगे तभी ये वाला पॉइंट वी विल बी स्पेसिफाइंग कि कैसे ज़ोना पेलेसुडा रप्चर होता है। जैसे ही ज़ोना पेलेसुडा रप्चर होगा ना, ट्रोफोब्लास्ट सेल विल रिलीज अ फैगोसाइटिक सेल, जिसके वजह से यूट्रस के अंदर ड्रिलिंग होगा, और ड्रिलिंग होके ये पूरा ब्लास्टोसिस्ट उसके अंदर इम्प्लांट हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द इम्प्लांटेशन। ठीक है, आई विल बी टीचिंग यू दैट पॉइंट। वेट, जैसे ज़ोना पेलेसुडा रप्चर होगा, ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा, और ट्रोफोब्लास्ट का काम न्यूट्रिशन तो है ही, प्लस साथ में वो इम्प्लांटेशन में भी मदद करेगा। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या बताया बेटा मैंने?
यूट्रस के अंदर ये पूरा जो ब्लास्टोसिस्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में जाके इम्बाइब हो जाएगा। इम्बाइब मतलब बरी करके, अंदर खड्डा करके, यूट्रस में खड्डा करके अंदर बरी हो जाएगा। और फिर बरी होने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप दैट इज गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होगा। अंडरस्टूड? यस मैम। तो बरी होने के लिए सेल्स को डैमेज तो करना पड़ेगा ना। हमें अगर कोई चीज खड्डा करना है तो वहां के सेल्स को हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ फाइगोसाइटोसिस सेल्स या फिर लाइसिस सेल। ठीक है, चलो लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज implantation. As I've told you just now, implantation means getting implanted or embedded inside the uterine wall. यूट्राइन के अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट होने को हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। आप देख सकते हो इस डायग्राम को, पहले समझो बेटा, देन आई विल टीच यू द नेक्स्ट पार्ट। आप देख सकते हो कि ये ब्लास्टुला है ना, ये वाला एम्ब्रियोब्लास्ट है, ये रेड कलर का क्या है? एम्ब्रियोब्लास्ट है। ये एंडोमेट्रियम दिख रहा है, मतलब क्या है? ये यूट्रस है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रोफोब्लास्ट वाला लेयर देखो, जोना पहले थोड़ा चला गया, ट्रोफोब्लास्ट वाला लेयर देखो, यहाँ का टूट गया, यहाँ का टूट गया, और किसके अंदर चला गया है? यूट्रस के अंदर चला गया है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ? आप देख सकते हो कि ये व्हाइट वाला जो ट्रोफोब्लास्ट है, व्हाइट वाला जो ट्रोफोब्लास्ट है, पहले ये पूरा गोल था ना डायग्राम, है ना, पूरा ये राउंड था। अब यहाँ वाला जो रीजन है जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, ये वाला रीजन टूटा और कहाँ चला गया? एंडोमेट्रियम के अंदर। तो आप देख सकते हो व्हाइट व्हाइट सेल्स अंदर भी आ गए हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट वाले सेल्स हैं और ये एम्ब्रियोब्लास्ट है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये कैसे होता है। So the blastocyst after its formation gets implanted or embedded inside the uterine endometrium in the fundus region. Remember, do you remember the fundus region? Shall I go back to show you the fundus region? Fundus is the above dome shape region. ऊपर वाला dome shape region को हम fundus कहते हैं। ये देखो, ये वाला region. Understood? यस। यहाँ तक आते आते ब्लास्टुलेशन हुआ। अब यहाँ पे आने के बाद ये यूट्रस के अंदर जाएगा, मतलब एम्ब्रियो 90% ऑफ एम्ब्रियो यहाँ पे फंडस में होते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी इस वॉल, राइट साइड के वॉल पे या लेफ्ट साइड के वॉल पे भी इम्प्लांट होते हैं, पर ज्यादा करके फंडस में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज्यादा मिलेगा ना। ये डोम शेप का क्यों बना है बेटा? क्योंकि यहाँ पे एरिया ज्यादा मिलेगा फॉर द एम्ब्रियो टू ग्रो प्रॉपरली एंड नाइसली। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे फंडस में आने के बाद यहीं पे मोस्टली इम्प्लांट होता है, मोस्टली आई एम टेलिंग यू, बट इस वॉल पे और इस वॉल पे भी कभी कभार होता है। So in the fundus region, now trophoblast cell of the embryonic pole. अभी embryonic pole क्या था मैंने आपको बताया, जहाँ पे embryoblast है उसे हम embryonic pole कहते हैं। तो जो embryonic pole का जो trophoblast है, have the power to stick to the uterine wall. क्यों पावर है? क्योंकि ऊपर का जोना पैलेसुडा चला गया, डीजेनरेट हो गया, अब ट्रोफोब्लास्ट ओपन हो गया है और इसके पास पावर है कि वो कहीं पे भी जाकर चिपक सकता है, स्टिक हो सकता है। So rapid division of trophoblast in this part result in the formation of two layers. Please do understand the things properly and nicely. मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, जोना पैलेसुडा चला गया, ट्रोफोब्लास्ट पार्ट ओपन हो गया, अब क्या होगा? ट्रोफोब्लास्ट को चिपकने का पावर है, इट कैन गो एंड स्टिक टू द यूट्राइन वॉल। जैसे ही वो स्टिक करेगा, देखो स्टिक हुआ है, बरी नहीं हुआ है, प्लीज अंडरस्टैंड, स्टिक हुआ है। जैसे ये यूट्रस के वॉल को स्टिक होगा, ये फटाफट डिवीजन करेगा और ट्रोफोब्लास्ट दो लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रोफोब्लास्ट के दो लेयर बन गए, ट्रोफोब्लास्ट के दो लेयर बन गए। बाहर का लेयर को हम क्या बोलेंगे? सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट,
और अंदर के लेयर को हम बोलेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट। इतना सबको समझा सेकंड पॉइंट तक? मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। Trophoblast is having the ability to stick. It is not burying, it is sticking, just sticking. पहले वो सिर्फ चिपक रहा है यूट्राइन वॉल को। जैसे ही वो यूट्राइन वॉल को चिपकेगा, फटाफट माइटोसिस करेगा या सेल डिविजन करेगा। सेल डिविजन करते ही उसके दो लेयर्स बन जाएंगे, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। The outer layer is called as a syncytotrophoblast and the inner layer is called as a cytotrophoblast. Understood this much? Yes, ma'am. Okay. अब cytotrophoblast से क्या होगा? The process of cytotrophoblast extensively invade का मतलब क्या होता है? अंदर जाना। अब जो बाहर का सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट है, इसका प्रॉपर्टी कैसा है? इन्वेडिंग प्रॉपर्टी। इन्वेडिंग मतलब अंदर 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 जाएगा, एंडोमेट्रियम के अंदर अंदर जाएगा। कैसे अंदर जाएगा? सेल को डैमेज करेगा तभी तो जाएगा ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर मुझे कहीं तो जमीन में खड्डा करना है तो मुझे वो मट्टी वहां से निकालना होगा। तो एंडोमेट्रियम में भी अगर हमें खड्डा करना है, अंदर जाना है, तो यहाँ के सेल्स को डैमेज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे सेल को डैमेज? विद द हेल्प ऑफ लाइटिक एंजाइम। तो सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट में लाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि रप्चर करेंगे एंडोमेट्रियल सेल, thereby making a burrow, एक खड्डा बना रहे हैं, into which the embryo is going to implant, अंदर उसमें implant होगा। और ये प्रोसेस कब तक हो जाता है? 10th डे तक हो जाता है। The whole embryo is embedded मतलब अंदर जाना, into the endometrium, completing the process of implantation. फिर आप मुझे बोलोगे मैम साइटोट्रोफोब्लास्ट का क्या काम था? तो साइटोट्रोफोब्लास्ट न्यूट्रिशन का काम करेगा, सिर्फ सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट उसको इम्प्लांटेशन में मदद करेगा। अंडरस्टूड? चलो रीड दिस पॉइंट आल्सो। अंडरस्टूड बच्चा? एनी पॉइंट नॉट अंडरस्टूड? प्लीज लेट मी नो। टेक योर टाइम, बट प्लीज टेल मी कि आपका पढ़ के हो गया या नहीं।
Yes, any doubt? Anyone is having any sort of doubt? Yes, childrens. No, ma'am. No. No, ma'am. No. Shall I move forward? Yes. Yes. To take a screenshot of this particular page. All of you take a screenshot of this particular page. You can see how the process has been going on. You can see this is an ovum. Ampulla region में you can see a sperm coming and an egg. Fertilization is taking place. You can see the fallopian tube में ये process हो रहा है morula तक पहुंचा है. Morula के बाद ब्लास्टुलेशन आप देख सकते हो फंडस रीजन में हो रहा है. आप देख सकते हो मैंने आपको बताया 90% यहाँ पे होता है पर जरूरी नहीं है. लेफ्ट एंड राइट साइड में भी इम्प्लांटेशन हो सकता है. तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि इम्प्लांटेशन कहाँ पर हो रहा है. On the, in my case, on the left hand side, you can see the implantation, how it is taking place by the burying. It has been buried inside. So how many days has taken place? कितने दिन हो गए implantation करके? How many days implantation कौन से दिन पे हो जाता है? 10th day. 10th. हाँ 10th day. 10th day. 10th day पे implantation हो गया. So now अगर ये सारी चीजें हो रही हैं इसका मतलब मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होगा क्या? ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होगा? ऑब्वियसली नो. No. है ना. ये कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिवेट रहेगा ही क्योंकि वो एल्बिकेन में बदलेगा ही नहीं. क्योंकि जब ये जाइगोट बन रहा है मतलब कि ये प्रोजेस्टेरॉन बनाते रहेगा बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंडोमेट्रियम लेयर. आप देख सकते हो कि कितना मोटा है एंडोमेट्रियम. वी हैव ऑलरेडी लर्न इट हैज बीन ग्रोन टू 10 mm, 5 to 6 mm लेट अस से. इतना मोटा हो गया है ये एंडोमेट्रियम. और किस लिए हुआ है? मेकिंग अ कुशन फॉर द एम्ब्रियो टू इम्प्लांट. जैसे ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा ये पूरा एंडोमेट्रियम टूट जाएगा. ये किसकी वजह से टिका है? प्रोजेस्टेरॉन की वजह से टिका हुआ है. ठीक है. तो इस वक्त अगर ये प्रोसेस हो रहा है फीमेल के बॉडी में मतलब उसका मेंस्ट्रुअल क्योंकि ऑलरेडी दिस सेक्रेटरी फेज चल रहा है. 10 days हो चुके हैं तो अब 10 days तक पीरियड्स मिस हो चुके हैं. है ना. 10 days तक ये प्रोसेस में पीरियड्स मिस हो चुके हैं. ओके. हेलो मैम. हाँ बेटा बोलो. मैम फिर मेंस्ट्रुएशन कभी शुरू होगा? जेस्टेशन की बाद की लैक्टेशन के बाद? आफ्टर लैक्टेशन बेटा. ओके मैम. वैसे तो ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑल द एंडोमेट्रियम विल ब्रेक ना बच्चा. यस. वैसे तो ब्लीडिंग तभी स्टार्ट हो जाएगा ड्यूरिंग दिस थिंग. ठीक है. बट फुल अब जैसे डिलीवरी हो गया तो डिलीवरी होगा तो ऑब्वियसली ये सारा चीज टूट जाएगा ना. ये पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम टूट जाएगा. अभी हम देखेंगे प्लेसेंटा यहाँ पे फॉर्म हुआ है वो पूरा प्लेसेंटा टूट जाएगा. एवरीथिंग विल बी डैमेज ना क्योंकि ये जो फीटस है वो बाहर आ गया है तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग तो स्टार्ट ही हो जाएगा. ठीक है. बट जो साइकिल है ब्लीडिंग तो स्टार्ट हो जाएगा. इट मे बी फॉर 1 month ब्लीडिंग में बी देयर. जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ 4 या 5 दिन ब्लीडिंग होती है बट आफ्टर डिलीवरी द ब्लीडिंग कैन बी फॉर एटलीस्ट अ मंथ. पूरे महीने तक ब्लीडिंग होती है बिकॉज ये पूरा डैमेज हुआ रहता है ना टिश्यूज. तो इसको पूरा रिकवर होने में कभी कभी 1 month लग जाता है. और फिर वो साइकिल स्टार्ट होने में कम से कम 2 या 3 महीने लगते हैं. फिर से वो बैक टू नॉर्मल साइकिल स्टार्ट होने के लिए. यस मैम. अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन फीमेल टू फीमेल. किसी फीमेल्स में वो साइकिल 6 months में स्टार्ट होते हैं. किसी फीमेल्स में वो साइकिल 1 year के बाद स्टार्ट होते हैं. और किसी में
2-3 महीने के बाद स्टार्ट हो जाते हैं. सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अ हार्मोन बेटा. अगर हार्मोन प्रॉपरली काम कर रहे हैं, अगेन द साइकिल विल बी टर्न्ड ऑन. और ये साइकिल कब तक ये रहेगा, बंद रहेगा, जब तक कि फीमेल लैक्टेशन कर रही है. वो भी हम आगे पढ़ेंगे बेटा कि जब तक मदर फीडिंग करती रहती है, व्हेन द मदर इज फीडिंग, उस टाइम पे प्रोलैक्टिन हार्मोन एक्टिवेट रहता है ब्लड में, बिकॉज प्रोलैक्टिन इज इंपॉर्टेंट फॉर लैक्टेशन, फॉर मिल्क सिक्रीशन. तो जब भी ब्लड के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन एक्टिवेटेड रहेगा, उस टाइम पे प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए. इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ी देर के लिए स्टॉप्ड रहता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बार स्टार्ट हो गया मतलब कि फिर से एग डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा. अंडरस्टूड. और फिर Yes. से एग डेवलप होना स्टार्ट हो गया मतलब कि क्या है, अगर स्पर्म आया तो फिर से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. सो नेचर ने अपने आप एक गैप बनाया है. कैसे वो गैप बनाया है, जब तक फीमेल के बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन एक्टिवेटेड रहेगा, उस टाइम तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहेगा. एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया मतलब कि फिर से एग बनने लगा और फिर से she can give birth to a young one, but there should be some gap in between. Understood? So naturally that gap has been done with the help of this hormone. So this is what is about this. Now next step क्या होगा बेटा, अब इम्प्लांट हो गया. अब इम्प्लांट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या स्टार्ट होगा, गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन. अब गैस्ट्रुलेशन में ना बेटा 3 लेयर्स बनेंगे. तो वो स्टार्ट होने के पहले प्लस फर्स्ट नोट डाउन द असाइनमेंट. All of you note down the assignment. Noted बच्चों. मैम ये लास्ट क्वेश्चन नहीं समझ रहे. पॉलीस्पर्मी. पॉलीस्पर्मी कैसे अवॉइड होगा, when the vitelline membrane will be converted into fertilization membrane. ये पॉलीस्पर्मी मतलब एक ही स्पर्म अंदर जा पाएगा, बहुत सारे स्पर्म नहीं जा पाएंगे, ताकि एक ही एम्ब्रियो फॉर्म हो. समझा प्रथमेश? मैम मयूरेश समझ. अच्छा मयूरेश, सॉरी. मिस पॉलीएम्ब्रियोनी और पॉलीस्पर्मी. क्या बेटा, पॉलीएम्ब्रियोनी और पॉलीस्पर्मी. पॉली एम्ब्रियोनी बोलो या पॉलीस्पर्मी बोलो, मतलब स्पर्म अंदर नहीं जा पाएगा तो एम्ब्रियो कहाँ से बनेगा. यस. सेम थिंग बट अनदर टर्म आई हैव गिवन ओवर हियर. पॉलीस्पर्मी भी राइट है, पॉली एम्ब्रियो भी राइट है. जब स्पर्म ही नहीं जाएगा तो एम्ब्रियो कहाँ से बनेगा. सो जैसे ही फर्स्ट स्पर्म वेटलाइन मेम्ब्रेन को टच करता है, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन. और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का बनने का मतलब ही है कि भले कितने भी स्पर्म अंदर आने दो, पर अब कोई अंदर नहीं जा पाएगा, मतलब साइटोप्लाज्म में कोई अंदर नहीं जा पाएगा, सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेटलाइन मेम्ब्रेन से ही बाहर चले जाएंगे. भले बाकी के स्पर्म ने जोना पेलेसुटा को क्रॉस किया हो, कोरोना रेडिएटा को क्रॉस किया हो, पर जो सबसे पहला स्पर्म अंदर वेटलाइन मेम्ब्रेन को टच करता है वही अंदर जा पाता है. फिर ये दरवाजा बंद हो जाता है, फिर कितने भी स्पर्म आने दो. तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ पॉलीस्पर्मी. ठीक है, कोई भी स्पर्म अंदर अब नहीं आ सकता, या स्पर्म नहीं आ पाएगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, तो पॉली एम्ब्रियोनी भी बोल सकते हैं इसको हम. और कुछ डाउट? ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप टेक्स्ट बुक देखकर रेफर करके लिखोगे, क्योंकि क्वेश्चंस का आंसर्स फाइंड आउट करोगे तो आपको और